Hello everyone. In the last class, we were seeing the applications of Heisenberg's uncertainty principle. We have seen the three applications. One is the non-existence of electrons in nucleus, then the existence of neutrons and protons inside the nucleus. In this, we have also seen the existence of alpha particles inside the nucleus. Then we did the determination of atomic size, which is also known as the radius of Bohr's first orbit or the radius of hydrogen atom in the ground state. Now today we will see the last application of Heisenberg's uncertainty principle, which is ground state energy of a linear harmonic oscillator. So now here what we'll do, हम derive करेंगे ground state energy की expression for a linear harmonic oscillator with the help of Heisenberg's uncertainty principle. ग्राउंड स्टेट एनर्जी निकालनी है. ग्राउंड स्टेट का मतलब क्या है कि इस स्टेट में जो एनर्जी होगी वो मिनिमम होगी. तो जैसे हमने थर्ड एग्जांपल किया था वैसे ही इसे करेंगे. एनर्जी जो है उसका फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो 0 होता है फॉर मैक्सिमा और मिनिमा. तो हम वही फॉर्मूला यहाँ पर यूज करेंगे. तो उससे पहले हमें टोटल एनर्जी की एक्सप्रेशन पता होनी चाहिए. We already know the total energy of a one-dimensional linear harmonic oscillator is given by E is equal to P square upon 2m plus half omega square x square, where P square upon 2m is the kinetic energy and half m omega square x square is the potential energy. Now, if the oscillating particle is confined to region of linear dimension A, then delta x is nearly equal to A. अगर हमारे पास जो मिनिमम मैक्सिमम अनसर्टेनिटी है पार्टिकल की पोजीशन को पता लगाने की, विच इज अंडरगोइंग लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेशन, अगर वो ए है तो हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से, यहाँ पर जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यूज कर रहे हैं इसका ध्यान रखना, वो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू और नियरली इक्वल टू एच कट अपॉन 2 है. इसका ध्यान रखना इसको डिराइव करते टाइम. सपोज मेरे पास ये लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेशन हो रहा है, तो लेट्स से दिस डिस्टेंस, दिस होल लेंथ इज अराउंड a. ठीक है. इफ द पार्टिकल इज ऑसिलेटिंग एंड इज कन्फाइंड टू अ रीजन ऑफ लीनियर dimension a, then delta x is equal to a, so delta px will now become h cut upon 2a. So substitute the value of this momentum in the total energy of the oscillator. So E comes out to h cut square upon 8m a square plus half m omega square a square. So now this is the expression of the total energy of the oscillator, and what we have to find? We have to find the ground state energy of the oscillator. That means we have to find the energy of the lowest state of the oscillator, and lowest state, ground state, is the state which has the minimum energy. So for maxima or minima, the first derivative will be equal to 0. So differentiate equation 1.85 with respect to a. So dE upon dA हमारे पास हो जाएगा minus h cut square upon 4m a cube plus m omega square into a. Let a is equal to a naught for which the energy is minimum. तो हम equation 86 को substitute करेंगे equal to 0 and put a equal to a naught. और जब हम इस equation को solve करेंगे तो हमारे पास a naught आएगा under root of h cut upon 2m omega. Now substitute this value of a naught in equation 1.85. So this will give the minimum energy of the oscillator or the ground state energy of the oscillator. So E minimum हमारे पास आएगा h cut square upon 8m a naught square plus half m omega square a naught square. Now substitute the value of a naught and the minimum energy comes out to be half h cut omega.
which is the ground state energy of a linear harmonic oscillator, and this is a very well known expression. You all are familiar about this expression. तो यहाँ से हमें पता चला कि अगर हम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यूज करते हैं तो उस प्रिंसिपल की हेल्प से भी वी कैन फाइंड द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ अ लीनियर हार्मोनिक oscillator, which comes out to be half h cut omega, and this is also known as the 0 point energy of the oscillator. So here we are finished with the Heisenberg's uncertainty principle, the experimental verification of Heisenberg's uncertainty principle, and the applications of Heisenberg's uncertainty principle. और ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. और जो नेक्स्ट अभी हमारे पास लास्ट टॉपिक है यूनिट 1 का 1.17, विच इज द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल फ्रॉम डी-ब्रॉगली वेव और वेव पार्टिकल डुअलिटी. इसमें हम वेव पार्टिकल डुअलिटी का यूज करेंगे टू डिराइव द हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी principle. This is also very important from your examination point of view, and this is the last topic of your unit 1. तो इसका डेरिवेशन हम कैसे करेंगे? सिंपल डेरिवेशन है, जैसे हमने ग्रुप वेलोसिटी का डेरिवेशन किया था उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पर हम यूज करेंगे. Now the Heisenberg's uncertainty principle can be obtained by assuming that a particle in motion can be taken as a group or packet of waves, and the velocity of this group is equal to the velocity of the particle. ग्रुप वेलोसिटी के टॉपिक में हमने ये ऑलरेडी देखा था कि अगर कोई पार्टिकल, कोई क्वांटम पार्टिकल मोशन में है तो उसके साथ ग्रुप ऑफ वेव्स एसोसिएटेड होती हैं जो सुपर इम्पोज करके वेव पैकेट बनाती हैं. और जो वेलोसिटी होती है, ग्रुप वेलोसिटी इस वेव पैकेट की, ये हमने देखा था वो इक्वल होती है टू द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, चाहे वो पार्टिकल रिलेटिविस्टिक है या नॉन रिलेटिविस्टिक है. मतलब उसकी कोई भी वेलोसिटी है वो हमेशा इक्वल होती है टू द ग्रुप वेलोसिटी that is associated with the wave packet of the particle. और ये जो particle है it can be located anywhere within the group, and therefore there is a limit to the accuracy with which one can measure its particle properties. अगर हम कहते हैं कि जो ग्रुप है it is taken to be narrow as shown in figure 1.14a, अगर ग्रुप हमारे पास नैरो है उस केस में क्या होता है, हम पार्टिकल की पोजीशन तो इजीली लोकेट कर सकते हैं पर वहां पर हमें पार्टिकल की मोमेंटम जो है वो निकालने में दिक्कत होती है, बिकॉज लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p. अगर हमारे पास जो ग्रुप है, जो वेव पैकेट है वो अगर नैरो है तो उस केस में हम कहें पार्टिकल की वेलोसिटी तो एक्यूरेटली, पार्टिकल की पोजीशन तो हम एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं पर उसकी वेवलेंथ नहीं कर सकते. वेवलेंथ नहीं कर सकते तो मोमेंटम भी नहीं कर सकते, सिंस लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p. तो अगर पार्टिकल की पोजीशन को लोकेट करने की अनसर्टेनिटी कम है तो उसकी मोमेंटम को फाइंड आउट करने की अनसर्टेनिटी बढ़ जाती है. इसी तरीके से अगर जो वेव पैकेट है वो हम वाइड वेव पैकेट लेंगे तो उस केस में पार्टिकल जो है पूरे वाइड वेव पैकेट में कहीं पर भी प्रेजेंट हो सकता है, तो वहां पर पार्टिकल की पोजीशन को फाइंड करने की अनसर्टेनिटी बढ़ जाएगी और मोमेंटम को, दैट मींस लैम्डा को फाइंड करने की और मोमेंटम को फाइंड करने की अनसर्टेनिटी कम हो जाएगी, बिकॉज लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p. तो जो वेव पैकेट कॉन्सेप्ट है वो इन एंड ऑल रिलेटेड है हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से. तो हम यहाँ पर हम ये देखेंगे कि वेव पैकेट का कॉन्सेप्ट लेके क्या हम हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को डिराइव कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं. तो फॉर दिस, जैसे हमने ग्रुप वेलोसिटी में किया था, जो हम ग्रुप ऑफ वेव्स कंसीडर करेंगे, लेट्स से इट इज ओनली कंसिस्टिंग ऑफ 2 वेव ट्रेन्स which are having the same amplitude A, and let's say they are having the slightly different angular frequencies omega 1 and omega 2. So the wave functions of the wave can be represented by psi 1 and psi 2. Now psi 1 is A sine omega 1 t minus k1x,
psi2 is a sin omega 2t minus k2x. एम्पलीट्यूड दोनों वेव्स का सेम है, दोनों की एंगुलर फ्रीक्वेंसीज डिफरेंट है, ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2। दोनों के जो प्रोपागेशन कांस्टेंट्स हैं या प्रोपागेशन वेव नंबर्स हैं k1 एंड k2, दे आर आल्सो डिफरेंट। ठीक है, जब हमने ग्रुप वेलोसिटी का डेरिवेशन किया था तो वहां हमने कोसाइन फंक्शंस लिए थे, यहाँ हम साइन फंक्शंस ले रहे हैं, बस इतना डिफरेंस है। अब जब ये दोनों ग्रुप ऑफ वेव्स, अब ये जो दोनों वेव्स हैं, जब ये सुपर इम्पोज करेंगी, देन वी विल गेट द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड व्हिच विल बी द एम्पलीट्यूड ऑफ द होल वेव पैकेट। So let's say the psi is the resultant amplitude, so that will be equal to psi1 plus psi2. So substitute the values of psi1 and psi2, so psi becomes a sin omega 1t minus k1x plus a sin omega 2t minus k2x. Now अब हम इसमें क्या करेंगे, we'll take a common and then we'll apply the formula of sin c plus sin d. sin c plus sin d क्या होता है, 2 sin c plus d upon 2 into cos c minus d upon 2. तो a as it is रहा, 2 का फैक्टर आया, then it is sin c plus d upon 2. तो हमारे पास ये हो गया sin ओमेगा t minus kx into cos c minus d upon 2 cos delta omega upon 2 into t minus delta k upon 2 into x, where omega is omega 1 plus omega 2 upon 2, that is the average angular frequency, and k is the k1 plus k2 upon 2, that is the average propagation constant, and delta omega is omega 1 minus omega 2, which is the change in angular frequency, and delta k is k1 minus k2, which is the change in propagation wave number. तो हमारे पास इक्वेशन 1.89 आई। होप ये इक्वेशन सबको क्लियर है, ये कैसे आई है। इसमें सिंपल साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगाओ। सबको ये ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन पता है, साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है, मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। तो जब हम उन वैल्यूज को यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 1.89, where omega and k are given by these expressions and delta omega and delta k are given by these expressions. So the resultant amplitude given by equation 1.89 is plotted in figure 1.15. अब जो ये वेव फंक्शन हमारे पास आया, इसको यहाँ पर प्लॉट किया। अब ये क्या बना रहा है, ये एक वेव पैकेट बना रहा है। ठीक है, ये एक वेव पैकेट है जिसके अंदर पार्टिकल जो है कहीं पर भी प्रेजेंट हो सकता है, और नोड्स पे, ये नोड्स होते हैं जहां पर एम्पलीट्यूड 0 होता है। नोड्स वो पॉइंट होते हैं जहां पर पार्टिकल प्रेजेंट नहीं होता, और एंटी नोड्स वो पॉइंट होते हैं जहां पर पार्टिकल के प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है। तो इसी प्रॉपर्टी का हम यहाँ पर यूज करेंगे टू डिराइव द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। Now the loops formed travel with group velocity v, which we know is same as the particle velocity. vg को यहाँ पर v से डिनोट किया है। Therefore, the loop formed is equivalent to the position of the particle. The particle can be located anywhere in between one node to the next in the loop, and therefore an error equal to the separation in the two nearest nodes enters in the position measurement of the particle. Now ये लाइन इंपॉर्टेंट है, और इस लाइन का मतलब क्या है, हमें क्या निकालना है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो उसके लिए हमें पहले डेल्टा एक्स निकालना पड़ेगा। डेल्टा एक्स हम कैसे निकालेंगे, देखो ये जो वेव पैकेट बन रहा है, इस वेव पैकेट में हमारे पास 2 नोड्स हैं। ठीक है, पार्टिकल जो है इन 2 नोड्स के बीच में कहीं पर भी प्रेजेंट हो सकता है। इट कैन बी प्रेजेंट एनीवेयर इन बिटवीन द नोड्स। तो अगर हमें यहाँ पर, अगर मैं ये एक्सिस बनाती हूँ, लेट्स से दिस इज रिप्रेजेंटिंग द एक्स एक्सिस, अगर मुझे ये वैल्यू पता है क्या है और मुझे ये वैल्यू पता है क्या है, और मैं इन दोनों का अगर डिफरेंस करूं तो मेरे पास ये डिस्टेंस आ जाएगा।
अगर मुझे ये डिस्टेंस मिल गया तो मुझे क्या मिलेगी, मैक्सिमम अनसर्टेनिटी इन डिटरमाइनिंग द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। पार्टिकल इन दोनों नोड्स के बीच में कहीं पर भी हो सकता है। तो ये निकालने के लिए हम सबसे पहले इन नोड्स की पोजीशंस को निकालना पड़ेगा। वो हम कैसे निकालेंगे, हमें ये पता है कि जहां पर नोड बनते हैं वहां पर जो एम्पलीट्यूड है साई वो 0 होगा। तो साई अगर 0 है इसका मतलब 1.89 इक्वेशन इज इक्वल टू 0 और cos डेल्टा ओमेगा अपॉन 2 इंटू टी माइनस डेल्टा के अपॉन 2 इंटू टी इज इक्वल टू 0। नाउ cos का फंक्शन 0 कब होगा, जब डेल्टा ओमेगा अपॉन 2 इंटू टी माइनस डेल्टा के अपॉन 2 इंटू टी इक्वल होगा 2n प्लस 1 पाई बाय 2। मतलब cos पाई बाय 2 0 होता है, cos 3 पाई बाय 2 0 होता है, cos 5 पाई बाय 2 0 होता है, एंड सो ऑन। सो फॉर n इज इक्वल टू 0 1 2 cos 2n plus 1 into pi by 2 is equal to 0. So this gives delta omega upon 2 into t minus delta k upon 2 into x is equal to pi by 2, 3 pi by 2, 5 pi by 2, so on for the formation of nodes. तो nodes कहाँ पर बनेंगे, जब cos की वैल्यू pi by 2 होगी एक नोड वहां बनेगा, जब cos की वैल्यू 3 pi by 2 होगी तो एक नोड वहां बनेगा, जब cos 5 pi by 2 होगा तो एक नोड बनेगा, cos 7 पाई बाय 2 पे नेक्स्ट नोड बनेगा, क्योंकि इन सब कोसाइंस की वैल्यू 0 होती है। तो जो दो कंसेक्यूटिव नोड्स हैं वो कब बनेंगे, जब डेल्टा ओमेगा अपॉन 2 इंटू टी माइनस डेल्टा के अपॉन 2 इंटू एक्स पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2 होगा। या हम ये कह सकते हैं, लेट्स से हमारे पास दो सक्सेसिव नोड्स हैं x1 एंड x2, ठीक है। सपोज जो ये नोड है ये एट पोजीशन x1 है और जो ये नोड बना है ये एट पोजीशन x2 बना है। अगर हमें x2 माइनस x1 मिल गया, दैट मीन्स हमें क्या मिल गया, हमें मिल गई डेल्टा x, दैट इज अनसर्टेनिटी इन डिटरमाइनिंग द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। तो अब हमें इस x2 और x1 की वैल्यू निकालनी है यूजिंग द कंडीशन ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ नोड्स। नाउ लेट्स से एक नोड x1 पे बना और सक्सेसिव नोड x2 पे बना एट एनी टाइम t। तो ये इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा ओमेगा अपॉन 2 इंटू टी माइनस डेल्टा के अपॉन 2 x1 इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाय 2। नेक्स्ट क्या होगा, डेल्टा ओमेगा अपॉन 2 इंटू टी माइनस डेल्टा के अपॉन 2 x2 इज इक्वल टू 2n प्लस 3 पाई बाय 2। एक नोड अगर n इज इक्वल n वैल्यू पे बन रहा है तो दूसरा नोड जो है वो n प्लस 1 वैल्यू पे बनेगा, दूसरा सक्सेसिव नोड। तो एक नोड अगर n पे बन रहा है, इस n को अगर मैं n प्लस 1 से रिप्लेस करती हूँ तो ये बन जाएगा 2n प्लस 2 प्लस 1 विच इज 2n प्लस 3। Now if I subtract the equations 91 and 90, then I get delta omega terms cancel out हो जाएंगी, I'll get delta k upon 2 into x1 minus x2 equal to pi। तो डेल्टा x जो है, लेट्स से दिस इज, यहाँ पर इन्होंने इसको ऐसे रिप्लेस कर लो, इन्होंने x1 को बड़ा लिया है और x2 को छोटा लिया है। So let's say this is x1, this is x2, so delta x is x1 minus x2, the bigger value minus the smaller value. So delta x is x1 minus x2 equal to 2 pi upon delta k, and k is nothing but 2 pi by lambda, and from de-Broglie relation we know lambda is equal to h upon p. So substitute the value of lambda, now differentiate this equation, delta k will be equal to 2 pi upon h into delta p. Since pi is constant, h is also constant. Now substitute this value of delta k in equation 1.92 and we get delta x is equal to 2 pi upon h into delta p. Now 2 pi and 2 pi will cancel out and we'll get delta x into delta p is nearly equal to h. तो यहाँ पर हमने क्या देखा,
जो अनसर्टेनिटी है इन द मेजरमेंट ऑफ पोजीशन एंड द अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ मोमेंटम, उसका प्रोडक्ट जो है इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट. Now note in equation 1.89, the term A sin omega t minus kx represents the outer dotted envelope that is shown in the figure 1.15 enclosing the wave packet. ये मैंने already बताया था जब group velocity का derivation किया था कि एक जो है वो phase velocity determine करेगा और एक जो है वो group velocity. Now इस equation से we can, so from this equation we can say that the Heisenberg's uncertainty principle can be derived using the concept of wave particle duality, and the exact form of Heisenberg's uncertainty principle is delta x into delta px greater than equal to h cut upon 2 or greater than equal to h cut. You can write any of the expressions in your exams. Both of the expressions are correct. The main thing is that the product should be of the order of the Planck's constant, that is 10 raised to power minus 34 joules second. तो यहाँ पे प्रोडक्ट अगर h के बराबर निकल कर आया है नियरली इक्वल, इसका मतलब वो वैल्यू जो है वो h कट से तो ज्यादा ही होगी या उसके इक्वल होगी. तो यहाँ पर we are finished with the unit 1. From the next lecture onwards, we will start with the second unit.